Hello, good afternoon, class 9th students. This is Nayan Sharma, your English teacher. Today, I am going to take the very first chapter of your supplementary reader Moments. The chapter's name is The Lost Child. A child goes, this is page number 1. A child goes to a fair with his parents. As you know, you are all resident of Kota. We are having a famous, nationwide famous Dashera festival here. Okay, so here a child goes to a fair. It can be Dashera fair or some other kind of fair along with his parents. Okay, he is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. Displayed means exhibited, प्रदर्शित करना या वहाँ पर जो दिखाई पड़ना. ठीक है, तो एक बच्चा उसके माता पिता के साथ मेले में जाता है. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड. ये जनरल टेंडेंसी है बच्चों की कि जब वो कहीं नई जगह पर जाते हैं, फर्स्ट टाइम कोई चीज़ देखने के लिए जाते हैं, तो अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और साथ ही उनको एक विशेष प्रकार का आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति होती है. तो सेम वाज द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड. ही वॉज वेरी मच हैप्पी. मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी हिज फर्स्ट चांस टू विजिट ए फेयर. So he was excited, and as you know, there are different kinds of stalls or shops there in the fair. Quite delicious eatables in the form of sweets and other eatables were also there, and moreover, there were shops which were selling toys. Toys, as you know, most affectionate to children, but his parents don't buy them for him. But as you know, all children, they want to have toys, they want to purchase toys in the fair, and similarly they want to eat some sweets which stalls are there. Okay, displays means exhibited, प्रदर्शित करना. But his parents don't buy them for him. But this particular child's parents, they were not interested in buying sweets and toys for this particular child. Why then does he refuse when someone else offer them to him? Then in the end of the chapter, you will come to know when the child had lost his parents, the things which were demanded by him previously. After that, when he lost his parents, he was not interested in those things. He refused these things when someone else, in addition to his parents, when someone else offered these things to him. It was the festival of spring. Spring, you know, it's a season, Basant Ritu. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. तो ये बसंत के त्यौहार का अवसर था. फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेंस, और पतली गलियों, एलेज, एलेज मीन्स नैरो स्ट्रीट. ओके, तो सर्दी की ऋतु में उस शहर की पतली पतली गलियों में से प्रसन्नचित्त यानी कि बड़े सुहाने वस्त्र पहने हुए, क्लेड मीन्स ड्रेसेस, लोग
निकल कर आ रहे थे। ठीक है, तो ये बसंत का त्यौहार था और सर्दी के ऋतु में गांव के आसपास की गलियों और पतली पगडंडियों में से प्रसन्नचित्त, हैप्पीली ड्रेस्ड, राइट, people were coming out of the narrow lanes. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. So some people, they were walking, and some people, they were riding on the horses. Those who were capable of on a horse, they were riding on their horses. Others sat, being carried in bamboo and bullock carts. Some people, they were going in that fair, right, by riding in their bullock carts. तो कुछ लोग तो वहाँ पर पैदल जा रहे थे मेले की तरफ, कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर, और कुछ लोग बैलगाड़ियों में, बांस और लकड़ी से बनी हुई बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming means filled up to the neck. गले तक भराना कोई चीज़, we call it brimming. तो एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ, वो भी मेले की तरफ अपने माता पिता के साथ जा रहा था। बीच बीच में वो दौड़ता हुआ उसके पिता के पैरों के बीच में से निकलता, और उस समय उसको अत्यधिक आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका जीवन जो है अत्यधिक खुशी और हंसी की भावना से छलक रहा हो। ओके, नाउ दिस इज पेज नंबर 2. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind. Okay, lagged behind means to remain behind, पीछे छूट जाना. Fascinated means attracted, आकर्षित होना. Okay, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, उसके माता पिता ने उस बच्चे को पुकारते हुए कहा. As he lagged behind, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति की चाल थोड़ी तेज़ होती है, बच्चा धीमे कदमों से चलता है, तो वो अपने माता पिता से पीछे छूट गया था। और उसके पीछे रहने का एक कारण ये भी था कि वो बच्चा मेले की दुकानों में प्रदर्शित जो खिलौने थे उनके प्रति आकर्षित हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो खिलौने खरीद ले. दैट लाइन द वे, वो खिलौने एक कतारबद्ध तरीके से एक लाइन में उस खिलौनों की दुकान में जमे हुए थे, प्रदर्शित किए हुए थे. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. Obedient means to obey somebody's command, आज्ञा पालन करना. ठीक है. Hurried means शीघ्रता करना, जल्दी करना, to make haste. He hurried towards his parents. वो बालक शीघ्रतापूर्वक उसके माता पिता की तरफ आगे बढ़ा. His feet obedient to their call. और उसके जो कदम थे वो माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे. His eyes still lingering on the receding toys. Receding यानी पीछे छूट जाना, lingering यानी मंडराना. अभी भी उसकी निगाहें उन खिलौनों पर मंडरा रही थी जो कि खिलौनों की दुकान पर पीछे छूट चुके थे. As he came to where they had stopped to wait for him. जब वो बालक उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके माता पिता रुके हुए थे उनके बच्चे का इंतज़ार करते हुए. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. Stare यानी घूरना, gaze.
रिफ्यूज़ल यानी इनकार, ठीक है। तो जब वो पहुंचा उसके माता पिता के पास जहां वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो उस बालक ने अपने मन में जो तीव्र इच्छा थी खिलौने खरीदने की, वो उस इच्छा को दबा नहीं पा रहा था। राइट, सप्रेस यानी दबाना, डिज़ायर यानी इच्छा। उसके दिल की इच्छा खिलौने खरीदने के लिए जो उसके मन में उमड़ रही थी, उसको दबा नहीं पा रहा था। इवन दो, यद्यपि यहाँ तक कि ही न्यू वेल द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, वो ये जानता था कि एक जो है इनकार की घूरती हुई निगाहें पुराने अंदाज में उसके माता पिता की आंखों में उसको दिखाई पड़ेगी। यानी कि वो बालक इस बात को भली भांति ही जानता था कि चाहे वो कितनी भी जिद कर ले, उसके माता पिता हमेशा उसको घूर कर इनकार की मुद्रा में देखकर उसे खिलौने दिलाने से मना कर देंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड मीन्स मेक एन हम्बल रिक्वेस्ट, गुजारिश करना, प्रार्थना करना। मुझे वो खिलौना चाहिए, उस बालक ने माता पिता से गुजारिश करते हुए कहा। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज familiar tyrant वे। टायरेंट मीन्स किसी को आतंकित करना, डराना, वे यानी तरीका। तो उसके पिताजी ने उस बालक की ओर लाल घूरती हुई निगाहों से देखा, जो कि उनका परिचित बच्चे को डराने का तरीका था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you? उसकी माँ जो उसके प्रति थोड़ा नम्रतापूर्वक व्यवहार करती थी, माँ अपने पुत्र को जो है अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्यार करती थी, तो उसने उसके कोमल हृदय की इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसको बहलाने के लिए, उसे टालने के लिए माँ ने अपनी उंगली पकड़ने के लिए उसे दी। होल्ड यानी पकड़ना, फिंगर यानी उंगली। सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू। उस बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ बांटने के लिए माँ ने बच्चे से कहा, देखो बच्चे, तुम्हारी आंखों के सामने वो क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. Even means plain, समतल। तो उसकी आंखों के सामने वहाँ सरसों के फूलों से, सरसों की फसल में जो पीले फूल लगे होते हैं, उससे भरा हुआ एक खेत था, और काफ़ी दूर दूर तक वो सरसों के खेत फैले हुए थे, और वो एकदम पीले पिघले हुए सोने के समान प्रतीत हो रहे थे। और जब निगाह उठाकर उस बालक ने, उसकी माँ ने उन खेतों की ओर देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उस समतल खेत की भूमि पर जो है कई कई मीलों दूर तक वो पीले सरसों के फूल वाले खेत जो है फैले पड़े हैं, पिघले हुए सोने के समान। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Dragonflies, जो it's a big insect. Generally, you can watch them during rainy season, right? तो एक बड़ी फ्लाइज मतलब बड़ी मक्खियों का एक जो समूह था, राइट, वो उड़ता हुआ वहाँ से गुज़रा, अपने बैंगनी रंग के पंखों के साथ उन खेतों के ऊपर से उड़ता हुआ गुज़रा। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, ब्लैक बी कहते हैं भंवरे को, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और
इस प्रकार से ड्रैगन फ्लाइज वहाँ से गुजरती हुई उनका भंवरे और तितलियों का रास्ता एक प्रकार से काट रही थी, जो कि वहाँ उन सरसों के फूलों के आसपास मंडरा रही थी। उन फूलों का मधुर रस पीने के लिए उन फूलों में से जो मीठा एक द्रव पदार्थ निकल रहा था, उसकी तलाश में मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो हैं वहाँ पर, और भंवरे वगैरह जो थे वहाँ पर मंडरा रहे थे। ब्लैक बी यानी भंवरा। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गैस। वो बालक उन तितलियों और भंवरों के पीछे पीछे दौड़ रहा था जो कि हवा में उड़ रहे थे, उनकी तरफ टकटकी लगाकर या घूर कर देखते हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। देख रहा था कि ये जो कीट पतंगे थे, भंवरे, तितलियाँ और ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ये उड़ते उड़ते अपने पंखों को हवा में स्थिर कर लेते थे। स्टिल मीन्स टू मैक स्टैंड स्टिल, स्थिर करना। एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और वो तितलियों को पकड़ने के लिए जो है दौड़ लगा रहा था वो बालक। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही वो बालक तितलियों को और भंवरों को पकड़ने के लिए उनके पास जाता, राइट, तो वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ाना, फ्लैपिंग यानी टू मूव अप एंड डाउन, हवा में ऊपर नीचे अपने पंखों को करते हुए, फड़फड़ाते हुए वो वहाँ से उड़ जाती थी तितलियाँ और भंवरे वगैरह। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जबकि लगभग वो उनको पकड़ने ही वाला होता था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम टू द फुटपाथ। और तभी एक चेतावनी वाली पुकार जो है उसकी माँ उस बच्चे को अपने नज़दीक बुलाने के लिए निकालती थी। कॉशनरी कॉल मीन्स चेतावनी पूर्वक किसी को चेतावनी देते हुए पुकारना। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चे आओ हमारे साथ, हमारे नज़दीक रहकर चलो, और ये जो पगडंडी है, फुटपाथ है, इस पर हमारे साथ चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Teeming out means coming out, बाहर निकल कर आना। तो वो बालक जो है दौड़ता हुआ उसके माता पिता की तरफ बढ़ रहा था। गेली मीन्स इन ए हैप्पी मूड, प्रसन्नचित मुद्रा में। एंड वॉक एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और वो बालक दौड़ता हुआ अपने माता पिता से प्रसन्नचित मुद्रा में थोड़ा सा आगे निकल जाता था, क्योंकि उसके मन में एक उमंग थी, एक आनंद की अनुभूति वो कर रहा था, क्योंकि हो सकता है शायद ये पहला अवसर हो उस बच्चे का मेला देखने जाने का। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, और कभी कभी शीघ्र ही वो पीछे छूट जाता था वो बालक, जब वो आकर्षित हो जाता था उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की प्रति की तरफ, राइट। एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, और कुछ कीड़े मकोड़े फुटपाथ के आसपास जो कि अपने छुपने के स्थान से बाहर आ रहे थे, जिससे कि वो सूरज की रोशनी यानी कि धूप का आनंद ले सके। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रू, आओ बच्चे हमारे पास आओ। उस बालक के माता पिता ने वृक्षकुंज की छाया में से, पेड़ों की छाया में से अपने बच्चे को पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, जहाँ वो बैठे हुए थे
एक कुएं की दीवार के पास। ही रैन टूवर्ड्स देम, बालक माता पिता की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ उनकी तरफ गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, जैसे ही वृक्षकुंजों के अंदर बालक ने प्रवेश किया तो एक फूलों की बौछार पेड़ से फूलों के गिरने के कारण होने लगी, राइट। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू करेक्ट द रैनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और उसके माता पिता को भूलते हुए वो बालक दौड़ा उन फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथ में उठाने के लिए। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोर्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और लेकिन देखो, उसने सुनी वो कबूतर के जैसे एक पक्षी होता है फाख्ता, उसके कूकने की आवाज़, और वो दौड़ता हुआ उसके माता पिता के पास गया चिल्लाता हुआ, द डो द रैनिंग पेटल ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। देखो पापा मम्मी, ये कितनी सुंदर बर्ड है फाख्ता, और जो फूलों की बरसात जो हो रही थी वहाँ पर, ठीक है, वो अपने हाथों में भूल गया कि उसके हाथों में वो फूलों की पंखुड़ियाँ थी, वो उनको नीचे गिराते हुए अपने पिता को पुकारते हुए कहने लगा कि पिता देखो कितने सुंदर पक्षी हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, आओ बच्चे आओ, उन्होंने पुकारते हुए बच्चे से कहा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड क्रेपर्स राउंड द बैनियन ट्री, वो बालक वहाँ पर एक बरगद के पेड़ के आसपास जो जंगली बैलें थी उनकी तरफ वो दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और उस बालक को अपने साथ लेके वो एक सकड़े रास्ते से, घुमावदार रास्ते से, जो कि मेले की तरफ जा रहा था सरसों के खेत में से होते हुए, राइट। So I think this much is sufficient for today's lecture. Now the remaining part of this chapter we will have in my next lecture. Thank you all. Please go through this chapter at home.